मैथ्स थोड़ी पढ़ाई। बोलो। मैम वो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ, द कॉप एंड द एंथम। अच्छा हाँ, कॉप एंड द एंथम। वेट, हाँ, मैम यू गिव एन होमवर्क आल्सो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. what was the homework? To write summary Summary of or small explanation. on the desert. हाँ जी, so done. Yes, ma'am. Done. मैम मैंने बोला था ना लेटर राइटिंग या फिर नोटिस राइटिंग आएगा, तो लेटर राइटिंग आया था एग्जाम में। तो हो गया था। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही आया था। फिल इन द ब्लैंक्स में ना लेटर राइटिंग कैसा होता है? Yes, अरे मैम मतलब जैसे उसमें लिखा था कि फीवर के लिए चाहिए और कुछ कुछ सेंटेंस सर ने लिखे थे तो आगे हमें लिखना था ऐसा। अच्छा ओके, ठीक है, ओके फाइन। सो पहले हम लोग चैप्टर कर लेना स्टार्ट। फिर वी आर ऑन विच पेज? Ma'am, we are on. Ma'am, cop and the 22. anthem. We are on page number 22. 22 means Ma'am, that the orange part. one. Okay, okay, fine. So you all are having the book now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine, okay. Now, yeah, Soapy, yes, थोड़ा सा brief कर लेते हैं. Soapy was decided to go to which island? Blackwell's Island. To spend his winter time, to spend his winter duration. Okay. Now, what he was trying to go to that Blackwell Island. Okay. Soapy does his best to be on the wrong side of the law. Now, how one person can go to jail if he does something wrong. Okay. The same way Soapy started doing wrong things. Okay. He was trying to go against the law. He tries 3 tricks all in vain. उसने 3 tricks try करी लेकिन सब बेकार गई. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. उसको ऐसा लगने लगा था कि अब उसे कोई भी पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं और क्या होगा मेरा विंटर में. There were many easy ways of doing this. मतलब बहुत सारे easy ways हैं जेल जाने के. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे अच्छा easy way है कि एक अच्छे से restaurant में जाओ, dinner करो अच्छा सा. Then he would say that he had no money to pay. और फिर वहां जाके बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है पेमेंट के. And then a cop would be called. और फिर पुलिस वाले को बुलाया जाएगा. It would all be done very quietly. और शांति से सब कुछ हो जाएगा, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी. The cop would arrest him. Cop जो है वो arrest कर लेंगे. He would be taken to a judge. उसको जज के सामने लाया जाएगा. The judge would do the rest. बाकी का काम तो जज खुद कर देगा. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोफी ने क्या किया, जहां वो बैठा हुआ था मैडिसन स्क्वायर में, वहां से उठा और ब्रॉडवे स्ट्रीट पर आ गया. द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू, जहां पर जो ब्रॉडवे स्ट्रीट और फिफ्थ एवेन्यू मीट करते हैं उस एरिया में आ गया. He went across this wide space and started north on Broadway. फिर वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. अब वो एक बड़े से lighted restaurant के सामने आके रुका. This was where the best food and the best people and the best clothes appeared every evening. ये ऐसी जगह थी जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट था, जहाँ पे सबसे बेस्ट फूड मिलता था, लोग सबसे बेस्ट क्लोथ्स में वहां आते थे एवरी इवनिंग. Soapy believed that above his legs he looked all right. उसको लगा सोपी को कि जो लेग्स के ऊपर वाला पार्ट है ना मेरा, वहां तक तो मैं ठीक लग रहा हूँ, ठीक कपड़े लग रहे हैं मेरे. His face was clean, face भी उसका clean था. His coat was good enough, coat भी उसका ठीक ठाक था.
If he could get to a table, he believed that success would be his. उसको लगा अगर मैं एक टेबल तक पहुंच जाऊं और एक टेबल पे आके बैठ जाऊं तो मैं मतलब मेरा काम हो सकता है. The part of him that would be seen above the table would look all right. जो टेबल के ऊपर का पार्ट होगा ना उसकी बॉडी का वो तो ओके था. ठीक है. The waiter would bring him what he asked for. वेटर वो लेकर आ जाएगा जो भी वो मंगवाएगा. He began thinking of what he would like to eat. अब वो ये सोचने लगा कि वो क्या क्या मंगवाएगा. In his mind he could see the whole dinner. उसके माइंड में डिनर का पूरा सिनेरियो रेडी होने लगा. The cost would not be too high. जो कॉस्ट होगी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी. He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं वो सच में बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो जाए. मैं इतना हाई फाई नहीं मंगवाऊंगा. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन जो भी वो डिनर मंगवाएगा वो अच्छा होगा और वो विंटर होम में जाने तक के लिए अच्छी जर्नी होगी उसकी. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रखा अंदर, जो वेटर था ना हेड वेटर, उसने देख लिया कि उसके शूज ब्रोकन थे और उसके फटे हुए क्लोथ्स थे नीचे लेग्स को जो कवर कर रहे थे. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. Strong hands मतलब कि उसने फटाफट वेटर ने अपने आदमियों को बुलाया और सोपी को चुपचाप बाहर करवा दिया. Soapy turned off Broadway. अब बेचारा वो ब्रॉडवे से और कहीं जाने लगा. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. उसको लगा कि ये जो सबसे easy way था जेल जाने का ये ज्यादा कुछ काम का नहीं निकला. He must think of some other way of getting there. उसको लगा कुछ और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा वहां पहुंचने का. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. अब 6th Avenue के कॉर्नर में एक बहुत बड़ी शॉप थी और उसकी बहुत बड़ी कांच की विंडो थी. Bright with electric lights और पूरी शॉप एकदम चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कांच पर फेंक दिया. People came running around the corner. लोग भाग भाग के आने लगे वहां पे. A cop was the first among them. उनमें से सबसे पहले पुलिस वाला था. Soapy stood still. सोपी वहीं खड़ा रहा and he smiled when he saw the cop. और वो थोड़ा उसने स्माइल किया जब उसने देखा कि एक कॉप आ रहा है. Where's the man that did that? Asked the cop. अब उस कॉप ने पूछा वो आदमी कहाँ गया जिसने ये सब ये कांच तोड़ा है. Don't you think that I might have done it? सोपी ने बोला कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि शायद ये काम मैंने ही किया है. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. वो काफी खुश था सोपी और उसको लगता था कि ये कॉप तो मेरे पास ही आ जाएगा. But the cop's mind would not consider Soapy. लेकिन कॉप के माइंड में तो कुछ और ही था. Men who break windows do not stop there to talk to cops. उसने बोला कि जो भी आदमी ये काम करेगा वो यहाँ पर कॉप्स के साथ बात करने के लिए खड़ा थोड़ी रहेगा, वो तो भाग जाएगा. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. कॉप की नजर एक आदमी पर पड़ी जो भाग रहा था. He ran after him. तो कॉप सोपी को छोड़कर उस आदमी के पीछे भागने लगा. And Soapy, sick at heart, walked slowly away. तो सोपी बेचारा फिर से दुखी हो गया और धीरे धीरे चलने लगा. He had failed 2 times. तो 2 बार उसकी 2 ट्रिक्स खराब गई, बेकार गई. Across the street was another restaurant. अब स्ट्रीट के दूसरी साइड एक और रेस्टोरेंट था. It was not so fine as the one on Broadway. ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था. The people who went there were not so rich. जो अंदर जा रहे थे वो बहुत रिच नहीं थे. Its food was not so good. फूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. उसको लगा कि मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ना तो मेरे कोई कपड़ों को देखेगा और ना ही मुझे कोई रोकेगा. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो एक टेबल पर बैठ गया और खाना खाना शुरू कर दिया उसने.
When he had finished, he said that he had no money. जब उसने खाना खा लिया तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है. Get busy and call a cop. सोपी ने बोला चलो फटाफट कॉप्स को बुलाओ. And don't keep a gentleman waiting. और मुझे वेट मत करवाओ. No cop for you, said the waiter. Waiter ने बोला तुम्हारे लिए कोई कॉप्स नहीं आएंगे. He called another waiter. उसने एक और वेटर को बुलाया. The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. दोनों वेटर ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, सोपी को. He stood up slowly. वो सीधा अपने ईयर के ऊपर आके ऐसे गिरा, ये वाले साइड से. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. धीरे धीरे उठा और अपने कपड़ों से डस्ट झाड़ दी, साफ करी. Prison seemed only a happy dream. उसको लगा कि जेल जाना तो सिर्फ एक सपना ही रह गया, सच नहीं होने वाला लगता है. The island seemed very far away. ऐसा लग रहा था कि जेल बहुत दूर है. A cop who was standing near laughed and walked away. एक उसके पास कॉप खड़ा हुआ था, उसके ऊपर हंसा और चला गया. Soapy started moving again. वो फिर से आगे चलने लगा. When he stopped, he was near several theaters. अब जब वो रुका तो वो थिएटर्स के पास में था. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब ये जिस एरिया में आया था वहां पर लोग काफी अम्यूजमेंट के लिए आया करते थे. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. Women, men सब लोग रिच थे और यहाँ आते थे विंटर में. A sudden fear caught Soapy. अचानक से सोपी एकदम से डर गया. No cop was going to arrest him. उसको लगा कि उसको तो इस बार कोई कॉप पकड़ने वाला नहीं है. Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर वो एक बड़े से कॉप के पास आया, मतलब एक कॉप के पास आया जो एक बिग थिएटर के पास खड़ा हुआ था. He thought of something else to try. उसको लगा कि मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ. He began to shout as if he had too much to drink. वो इतनी जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो. His voice was as loud as he could make it. वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था. He danced, he cried out. डांस करने लगा, जोर से चिल्लाने लगा. And the cop turned his back to Soapy. कॉप ने सोपी की तरफ से टर्न कर लिया, मतलब कि उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो वहां से टर्न हो गया. And said to a man standing near him. और उसके पास एक आदमी खड़ा था, उसको बोलता है It's one of those college boys. कि ये तो एक कॉलेज बॉयज के जैसा कर रहा है, ये उनमें से ही एक है. He won't hurt anything. ये किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता. We have orders to let them shout. हमें ऑर्डर्स है कि इनको चिल्लाने दिया जाए, अगर वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दिया जाए. Soapy was quiet. ये जब पता चला उसको कि तो वो चुप हो गया. Was no cop going to touch him? क्या उसको आज कोई भी कॉप पकड़ने वाला नहीं है? He began to think of the island as if it were as far away as a star. उसको लगा अब जेल तो उतनी दूर है जितनी दूर एक स्टार होता है. He pulled his thin coat around him. उसने अपना कोट पहना. The wind was very cold. हवा बहुत ठंडी थी. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने देखा कि एक आदमी एक शॉप से एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था. The man's umbrella stood beside the door. उस आदमी का अम्ब्रेला डोर के पास ही पड़ा हुआ था. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. सोपी चुपचाप अंदर गया, उसने अम्ब्रेला उठाया और चलने लगा. The man followed him quickly. मैन ने उसको फॉलो किया और मैन बोला My umbrella. ये तो मेरा अम्ब्रेला है. Oh, is it? सोपी ने बोला अच्छा ये आपका है. Why don't you call a cop? आप किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? I took it. मैंने ये ले लिया. Your umbrella. Why don't you call a cop? There's one standing at the corner. एक कॉप को बुला लीजिए, वो तो वहां कॉर्नर में खड़ा है. The man walked more slowly. Soapy did the same. जो मैन था वो और धीरे धीरे चलने लगा और सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा. But the feeling that he was going to fail again. लेकिन उसको लग रहा था कि इस बार भी उसकी ट्रिक चलने नहीं वाली है. The cop looked at the two men. कॉप ने दोनों आदमियों को देखा. I, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. लो बोलो.
ये एक्चुअल में उस आदमी का भी अम्ब्रेला नहीं था, उसने भी सुबह किसी रेस्टोरेंट से उठाया था, तो वहां पर उसको यही बोल रहा था कि अच्छा मुझे लगा कि ये मेरा है बट तुम्हारा है शायद, तो तुम ही रख लो। बोलो खत्म। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। सोपी को आ गया गुस्सा कि हाँ हाँ ये मेरा ही है। द अम्ब्रेला मैन हर्रिड अवे, वो बेचारा चला गया। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, कॉप जो था वो किसी लेडी की हेल्प कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट, अब सोपी ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगा। He threw the umbrella as far as he could throw it, उसने इतनी जोर से अम्ब्रेला फेंका जितनी जोर से वो फेंक सकता था। He talked to himself about cops and what he thought of them, वो अपने आप ही बात करने लगा कॉप्स के बारे में खुद से ही। Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब वो खुद से ही बात कर रहा था कि इनको लगता है कि मैं तो ऐसा किंग हूँ जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. अब लास्ट में सोफी एक शांत स्ट्रीट पर आ गया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. अब वो वहां से साउथ की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लगा। He was going home, although home was only a seat in a park. वो घर जा रहा था जबकि एक्चुअल में घर क्या था, पार्क में एक सीट, वही उसका घर था। But at a very quiet corner, Sophie stopped. लेकिन एकदम शांत एरिया में कॉर्नर में सोफी जाके रुक गया। Here was his old childhood home. यहाँ उसका बचपन का घर था। Through one window he could see a soft light shining. एक विंडो में से उसे हल्की सी लाइट दिखाई दे रही थी। That had been his living room, और वो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। Where he had spent many happy, peaceful moments. जहाँ पर उसने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे। Sweet music came to Sophie's ears and seemed to hold him there. वहां से हल्का हल्का म्यूजिक आ रहा था और उसको वो वहीं पे रुक गया थोड़ी देर के लिए। The moon was above, peaceful and bright. मैम तो फिर बाद में वो गार्डन में क्यों रहने लगा? हाँ, मैम अगर उसका वहाँ पे घर था तो बाद में वो गार्डन में क्यों रहने लगा? वो उसका परमानेंट होम नहीं होगा ना, वो तो बचपन में जैसे कोई रख लेते होंगे लोग, वो तो हुआ होगा ना। फिर बाद में कुछ गलत किया होगा उसने, फिर वो निकल गया होगा, उसके बाद वो रोड्स पर ही चल रहा है। ओके। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. कुछ लोग आसपास से गुजर रहे थे। He could hear birds high above him. Birds की आवाज भी आ रही थी। And the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. थोड़ा थोड़ा म्यूजिक आ रहा था, उस म्यूजिक को वो पहचानता था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उन दिनों में उसके पास मदर हुआ करती थी, फ्लावर्स, फ्रेंड्स, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन थॉट्स, सब कुछ अच्छा हुआ करता था। There was a sudden and wonderful change in his soul. अचानक से उसके अंदर चेंज आने लगा। He saw with sick fear how he had fallen. अचानक से उसको लगने लगा कि वो कितने गलत काम करने लगा है। He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसको लगा कि उसने कितने दिन बेकार किए, उसकी गलत इच्छाएं, अपने गलत आशाएं, उसकी मतलब the lost power of his mind, मतलब अपने माइंड को उसने कितनी गलत बातों में लगा लिया था। And also in a moment his heart answered this change in his soul. और उसी मोमेंट में उसके दिल में चेंज आने लगा। He would fight to change his life. उसने सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा। He would pull himself up out of the mud. वो अपने आप को गंदे कीचड़ से बाहर निकाल लेगा। He would make a man of himself again. वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाएगा। There was time, he was young enough. अभी भी समय था और वो काफी यंग भी था। He would find his old purpose in life and follow it. वो पुराने समय के अकॉर्डिंग अपनी एम को फाइंड करेगा और उसको फॉलो करेगा। That sweet music had changed him. वो जो स्वीट म्यूजिक था उसकी वजह से उसके दिमाग में चेंज आने लगा था। Tomorrow he would find work. अगले दिन वो काम ढूंढेगा।
A man had once offered him a job. उसको याद आया कि एक आदमी ने उसे एक बार एक जॉब ऑफर की थी. He would find that man tomorrow. वो उस आदमी को कल ढूंढेगा. He would be somebody in the world. वो भी इस दुनिया में कुछ बनेगा. He would. Sophie felt a hand on his arm. ये सोच ही रहा था कि उसको ऐसा फील हुआ कि उसके आर्म के ऊपर किसी ने अपना हाथ रखा है. He looked quickly around into the broad face of a cop. उसने टर्न करके देखा तो एक कॉप था, एक पुलिस वाला था. What are you doing hanging around here? Asked the cop. कॉप ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Nothing. सोफी ने बोला कुछ नहीं. You think I believe that? कॉप ने बोला कि तुम जो बोलोगे क्या मैं वो विश्वास कर लूंगा. Full of his new strength, Sophie began to argue. अब उसके अंदर एकदम न्यू स्ट्रेंथ की वो अच्छा बनना चाहता था तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगा. And it is not wise to argue with a New York cop. और किसी भी न्यूयॉर्क के कॉप से आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता. Come along. कॉप ने बोला चलो मेरे साथ. 3 months prison on Blackwell's Island. तुम्हें 3 महीने की जेल होगी ब्लैकवेल आइलैंड में. Said the judge to Sophie next morning. और अगली मॉर्निंग जज ने ये बोल दिया कि तुम्हें 3 महीने की जेल होगी. मतलब कि जब वो अच्छा बनने की सोच रहा था तब उसको कॉप ने पकड़ लिया और जब वो खुद चाह रहा था कि कॉप पकड़े उसको तो उसकी सारी ट्रिक्स फेल चली गई. ठीक है. मैम तो इस चैप्टर में तो मैम एंथम कहीं पे आया ही नहीं. मैम एंथम मीन्स मैम एक सॉन्ग और सॉन्ग वो था ना. यस. लास्ट में सॉन्ग गाया था ना. हाँ ठीक है. ओके तो ये चैप्टर हो गया आपका ओवर. मैम इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक. चलो करते हैं इसकी फिर. What are some of the signs? ट्रू फॉल्स भी है. चलो करते हैं फिर. What are some of the signs of approaching winter referred to in the text? कौन कौन से साइंस थे जिनसे लग रहा था कि विंटर आ रही है? मैम कैन आई से Yes, Vedant. yes ma'am. There were many signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And a dead leaf fell at Sophie's feet. These were the signs which show that winter is approaching. मैम कैन आई. Correct. Done. Now true false. Sophie did not want to go to prison. False. मैम कैन आई. False. मैम Sophie had been to prison several times. ट्रू. True. True. ट्रू. It was not possible for Sophie to survive in the city through the winter. True. ट्रू. Sophie hated to answer questions of a personal nature. ट्रू. ट्रू. What was Sophie's first plan? Why did it not work? मैम कैन आई. मैम कैन आई. Who is this? अंश. Daksh. अंश. Ansh. Okay, Ansh, speak up. His first plan was to go to the restaurant and eat expensive food and leave without giving the money. So the restaurant manager will call the cop and he will go to the prison. Why did it not work? Ma'am, because the manager of the restaurant did see his boot and deny him to go inside. As soon as Sophie stepped in, the head waiter recognized his status by observing his clothes. So he Ma'am, did not was let him not enter. well dressed. He was not well. Okay. Now, but the cop's mind would not consider Sophie. What did the cop not consider and why? Ma'am, can I? Ma'am, can I say? On. Ansh is only there. Ma'am, Okay. can Ma'am, I am the. Ma'am, I am Vedant. Vedant and Ansh, two students are Ma'am, answering. Daksh also.
Daksh, yes, speak up, Daksh. Yes, ma'am. Ma'am, the cop doesn't consider the Soapy because he was not the criminal, as he was going to he was telling that he is criminal, and he is the criminal, and the cop considered that if a criminal does a crime, if a criminal does a crime, um, then he will run from the crime scene. Ma'am, can I I say? I did not get that much. Ma'am, can I Yes, say? yes, First, when the Soapy has a thrown stone on the glass, first the cop ran and see when the cop asked who had broken this glass, then the Soapy has tell that I have break. Do you not think that I have broken this glass? Then the cop tells that if anybody has broken the glass, he will not stay here. He will run. first of all, broken is the word, breaken is not the word. Moreover, if you use any proper noun like Soapy, you will not use the before Soapy. Okay. Yes, according to the cop, the person who does this kind of work, he will never stay there. Next, we have orders to let them shout. What is the policeman referring to? Policeman was referring to the boys, those kind of college boys who used to shout on the road, but they do not harm anyone. Okay. Now write true or false against each of the following. Soapy stole a man's umbrella. True. True. The owner of the umbrella offered to give it to Soapy. True. 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 True ना, उसने तो दे दिया. मैम लेकिन वो The तो man- असली ओनर नहीं था. हाँ मैम लेकिन वो असली ओनर नहीं था. हाँ, पर इसमें अभी उस मोमेंट पर तो ओनर वही था ना. अब असली नकली तो कुछ भी नहीं है उसमें. The man had stolen the umbrella that was now Soapy's. True. Soapy threw away the umbrella. True. Okay, there was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Soapy? Ma'am, can I? Yes. The music brought a change in Soapy. बस इतना ही. Yes, Steve. A song brought a change in his soul that he will do hard work and be someone in this world. वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो कि वो जहाँ पे रुका था वो उसका अर्ली होम था. वहां पर उसको पुरानी there he remembered his old memories, his about his mother, his friends, his good desires, and that soft music changed his mind to do good work. मैम पर अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर होता तो हम इतना ही लिखेंगे कि म्यूजिक ब्रॉट अ चेंज इन सोपी, तो भी हमें 1 मार्क तो मिलेगा ना. और अगर 2 मार्क आया तो मैम 2 मार्कर होगा तो आपने कहा वैसे लिखना है. हाँ, तो वो तो सिंपल है. देखो, हम ज्यादा रेडी कर सकते हैं, कम तो हम कर ही सकते हैं, बट कम से ज्यादा नहीं कर सकते. तो पहले से ही हमको इतना तो, और वैसे भी ये क्वेश्चन 1 मार्कर तो लगता ही नहीं है. क्वेश्चन रीड करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि दिस इज नॉट ऑफ 1 मार्कर. मैम वो तो मैम पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स में पूछती है. नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि वो 1 मार्कर में नहीं आ सकते. मैम पे डिपेंड करता है. वो तो बिल्कुल ऐसी 1 वर्ड थोड़ी है ये. मैम सर पे भी डिपेंड कर सकता है. हाँ, सर पे भी डिपेंड कर सकता है. मतलब पेपर मेकर है. मैम हो या सर हो, ये टीचर. क्वेश्चन को रीड करके मालूम पड़ता है ये दैट दिस वुड नॉट बी ऑफ 1 मार्कर.
चलो ये तो हो गया आपका। यस मैम। फाड़ के फेंक दो। ओके चलो, हम लोग ने लास्ट टाइम किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वाला। मैंने आप लोग सबको होमवर्क दिया था एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन और 2 डायग्राम। यहाँ से रेज हैंड करना है जिन्होंने ये होमवर्क नहीं किया। मैम मैंने नहीं किया। तो मैंने तमिल में बोला कि रेज हैंड करना है। मैम आधे नहीं करेंगे। हाँ मैं वही देख रही हूँ, उनको लगा मैं नहीं पूछूंगी, आज मैंने सडनली पूछ लिया। आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी 2 मिनट पहले। मैम एक काम करो मैम, छापा मारी मारो मैम सब में। बहुत सारे बच्चे हैं, ध्वनित से शुरू करो। ध्वनित, दक्ष, मितवा, ध्याना, तारा। तारा स्कूल का लिखना था मैम, इसलिए मैं नहीं मैम आप होमवर्क देखोगे भी? जैसे मैंने तो आपको 3 घंटे का काम दिया था। वेदांत देखो कितना वक्त लगा ये खत्म करने में, सच बोलना। मैम 30 मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट। मैम मैं Now नोट see, करना मैं नोट करना भूल गया। अब देखो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वेदांत, खुशी, दिया, जिया तो थी नहीं तो उसका तो काउंट किया नहीं जा सकता है, वो न्यूट्रल है। अमन तूने होमवर्क किया है? यस मैम। ओके, खुशी ने किया है, ठीक है। अब जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, 30 मिनट का काम था उनका, तो सही उनका बढ़ जाएगा। स्कूल का तो करो ही। अब ये कुछ एक्सक्यूज नहीं है, अरे मुझे स्कूल का था। मैम पर मेरे एग्जाम में ये वाला चैप्टर नहीं था। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन 3 बार लिखोगे, ये डायग्राम 3 बार। मैम पर ये वाला मेरे एग्जाम में नहीं था। तीर्थ इसलिए रीजन नहीं है कि नहीं था तो मैंने 1 टाइम नहीं किया, बाद में आने तो वाला है ना। मैम 3 पेज में करना था हाँ मैम, या फिर हाँ ध्याना बोलो। मैम मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैम मैं आधे लेक्चर से फिर निकल गई थी क्योंकि फिर ध्याना, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। anytime मैम your network issue is there, you have to connect anyone and have to ask. या फिर आप नेट का कुछ प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन लाओ बेटा। हाँ मैम, वो मैम अभी मेरा घर रिनोवेशन हो रहा है ना, तो मैम हम दूसरे घर पे रहना है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम। तो बेटा आपको पूछ लेना है या आपको रिकॉर्डिंग चेक कर देनी है कि मैम ने क्या होमवर्क दिया है। वो आपको रास्ता आपको निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये एवरी डे का प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ध्याना। मितवा, ओके मैम। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट डूइंग इट? मैम एक्चुअली है ना, कल आज हमारी टेंसेस की टेस्ट थी, मैम ने ऐसा कहा था, तो फिर मैं कल रात को वो करने बैठी और मुझे अच्छा, रात को एक याद मैम आया। का किया तो दूसरे मैम तो कहाँ बोलते हैं, चलेगा। तो अभी 3 टाइम सब करो, है ना। मैं इसीलिए स्कूल का बहुत होता है, मैथ्स का बहुत होता है, इंग्लिश का बहुत होता है, सबसे कम होमवर्क मैं देती हूँ। तो अब करो ज्यादा, अब मैं ज्यादा होमवर्क दूंगी। Neve on your video. Vedant, you are the monitor for the next session, Saturday. आपको रिमाइंड करवाना है, ये जो जो बच्चे उनका नाम लिखना है आपको अभी, और ये जो भी बच्चे उनका होमवर्क मैं चेक करूंगी। वो डायग्राम के अलावा आपने क्या कहा, समझ में नहीं आया क्रैकिंग की। लास्ट टाइम को याद नहीं था। बात कहो, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन 3 टाइम करना है और ये 2 डायग्राम 3 बार करना है। मैम 2 बार चलेगा? नहीं चलेगा। मैम इंग्लिश में तो मैम सबने कहा कि मैम हाँ दक्ष, मैम सारे में उनका सबसे कम होमवर्क होता है। क्या मैम सारे मैम ऐसा ही कहते हैं कि उनका ही सबसे कम होता है होमवर्क। इंग्लिश के मैम भी कहते मैम पर सबका बहुत होता है। मेरा तो कम ही होता है। मैं सोचती हूँ कि बच्चे कितना करेंगे, थक जाएंगे। स्कूल का इतना होता है, स्कूल इतने लंबे देर तक चलती है, कितना फोन के साथ और बुक के साथ बैठेंगे। पर आप मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ना, आप मुझे अभी फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो अब मैं नहीं 3 बार करके दिखा दूंगा। हाँ बस यही सुनना है मुझे। सैटरडे 3 बार हो जाएगा। अगर सैटरडे हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं इतना होमवर्क नहीं दूँ।
ओके मैम। मैम अंश तूने रेज हैंड क्यों किया? मैम पर एक बार सुन तो लो। अब मैं अंश से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो ध्वनि। मैम मैं कर दूंगा पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 12:40 को लेक्चर खत्म होता है, फिर खाने बैठता हो तो 1 बज जाता है मैम। मैम मेरा और हमारा लेक्चर कितने बजे होता है? 5:30। तो कल नहीं किया, आज भी आपको टाइम मिलता। अब 4:30 इंग्लिश को होता है, तो चलो फिर भी कितना टाइम मिला? 30 मिनट का काम होता है। ये एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैम पर आपका एग्जाम भी करना होता है ना। तो मैंने इसीलिए आपको कोई वर्कशीट दिया, मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। मैम ये आपके एग्जाम है। चलो वेदांत, यू हैव टू चेक, ओके? मैम यस जिया। मैम ये संडे आपकी एग्जाम है। ये संडे मेरी एग्जाम है। कोर्स है हिस्ट्री 2, ज्योग्राफी 2, सिविक्स 2। मैम मार्क्स सारे के चैप्टर 2। हाँ सारे के चैप्टर 2। और मैम ये जो होमवर्क है वो मुझे भी 3 टाइम करना है या फिर 1 टाइम? नहीं करना है। और मैम वो वाले दिन है ना, मेरे स्कूल का ओरल 2 बजे खत्म हुआ, इसीलिए और बाद में खाना भी नहीं खाया था। Okay, Neve, on your video first. चलो, now we have to start from the weather and climate part. Page number 23. चलो. Ready, everyone? Harsh, on your video you have to read it. No, ma'am, I am sitting near charger. That's why I have off my video. क्या हो गया? मैं चार्जर, मैं नो मैम चार्जर के पास बैठा हूँ। हाँ तो ठीक है, कर दो, चार्ज करो। खुशी, चलो तुम रीड करो वेदर एंड क्लाइमेट। हो जाओ हर्ष। Weather and climate. Is it going to rain today? It will be bright and sunny today. How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from one day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? Right, daily weather forecast होता है। Weather यानी कि क्या मितवा? अगर लास्ट लेक्चर में तुम थी तो हमने जहां जिस पेज से एंड किया उसी पेज में जो बाकी होगा वही शुरू करेंगे ना हम लोग। हिस्ट्री पेज नंबर 23। चलो, अब इसमें हमें 2 चीज समझनी है, वेदर और क्लाइमेट। वेदर जैसे अभी आपको सबको दिख रहा होगा कि बारिश का एटमॉस्फेयर है, पर अभी बारिश नहीं गिर रही है। फिर 10-15 मिनट में सडनली रेन होना शुरू हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा सडनली। सो दैट इज अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ अ एटमॉस्फेयर, जो सडनली चेंज होता रहता है। हॉट और ह्यूमिड या प्लेजेंट और ब्रीजी, ये वेदर होता है जो आवर टू आवर या डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, ड्रामेटिकली जो चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे, इसे हम एवरेज वेदर कंडीशन बोलते हैं। इसे हम वेदर बोलते हैं जो डे टू डे चेंज होता है। पर क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रिप्रेजेंट करता है कोई पर्टिकुलर प्लेस का, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो अगर मान लो कि मुझे वेदांत से पूछना है या दिया से पूछना है आज का मौसम कैसा है, हिंदी में हम ऐसा पूछते हैं ना, या मैं ऐसे नहीं पूछू कि आज का क्लाइमेट कैसा है दिया, आई विल आस्क हाउ इज द वेदर टुडे, राइट?
बिकॉज वो डे टू डे आर चेंज होता है, इसलिए हम वेदर बोलेंगे, हम क्लाइमेट नहीं पूछेंगे कभी कि अच्छा तेरे वहां क्लाइमेट कैसा है. नो, दिस इज रॉन्ग. हाउ इज द वेदर ओवर देयर, यू विल आस्क वेदर, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एवरेज कंडीशन जो पर्टिकुलर जगह की एवरेज कंडीशन जो होती है उसे क्लाइमेट हम बोलते हैं. तो यहाँ पे दो चीज है आपको अंडरलाइन करनी है, डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. ओके, वेदर का डेफिनेशन आप लिखोगे, वेदर is this R2R day to day condition of the atmosphere उसके बाद आप लिखोगे वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. इतना ही लिखना है. डे टू डे तक ना. ओके, और क्लाइमेट का रहेगा, देखो वो हाउएवर दिख रहा है, हाउएवर द एवरेज वेदर, उसमें हाउएवर निकाल देना है. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन लंबे समय तक रहता है वो पर्टिकुलर रीजन में, तब उसको क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बोला जाता है. सबका हो जाए फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको इसमें डिटेल में. अगर हम बात करें इंडिया की, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो इट इज ट्रॉपिकली रेनी क्लाइमेट. पूरे साल में कहीं ना कहीं स्नो या बारिश गिरती है इंडिया में. तो अगर एवरेज में वेदर इंडिया की बात करूं पूरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट इज ट्रॉपिकली रेनी क्लाइमेट. अंडरस्टूड? इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट? सीजन टू सीजन, कुछ जैसे साउथ में विंटर में बारिश गिरती है, फिर जब विंड्स वापस जाते हैं, रिट्रेटिंग विंड्स, जाते जाते बारिश गिराते जाते हैं. सो इट इज देयरफॉर नोन एज ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, राइट? ऐसे हर एक कंट्री का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है. यहाँ पे क्लियर? दो डेफिनेशन आपको आज लिखना है, वो वन टाइम ही लिखना है. फिर ये आज का वो 3 टाइम आज का होमवर्क नहीं होगा ना, तो वो बढ़ता जाएगा 5 टाइम 10 टाइम. ओके, सो इट्स योर चॉइस. मैम मैम Yes, कैन यू Divya. रिपीट होमवर्क? मैम ये पीछे की ग्लॉसरी लिखनी है. मैम होमवर्क क्या है? ये वेदर और क्लाइमेट का डेफिनेशन है जिया, जो आपको क्लास वर्क में लिखना है. मैम कल भी एग्जाम है. तेरी कब एग्जाम है तीर्थ? मैम कल भी है और उसके परसों भी है. तू सारी चीज ना एग्जाम के बाद करेगा, मैम ठीक है? टेंशन मत ले. अरे दक्ष रुक, एंड में वापस बताऊंगी. तीर्थ तू एग्जाम की प्रिपरेशन कर. मेरा जो भी होमवर्क है वो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाना चाहिए. नेक्स्ट जैसा ही हमारा नेक्स्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर आएगा उसमें खत्म होगा. डन तीर्थ? ओके. वेदांत अगर वो नहीं करते तो वो सारी चीज 20 बार लिखेगा. वेदांत फ्रेंडशिप नहीं चलेगी हाँ इसमें. तीर्थ डन?
Yes, ma'am. Okay. Chalo. Now we'll come to the temperature part. Aman, you have to read the temperature part. Okay. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night, but also from season to season. Summers are hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the income solar energy intercepted by the earth. Okay, wait till now wait. उसके बाद explain करूँगी. अब टेम्परेचर की बात करते हैं हम. टेम्परेचर यू फील एवरी डे, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ठंडी, गर्मी, ह्यूमिडिटी, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं. डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसे टेम्परेचर बोलते हैं. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. ये भी लिखना है आपको. बाजू में आपको दिख रहा है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. Yes, ma'am. Miss Yes, ma'am. Thermometer is used to measure the temperature. Barometer is used to measure the atmospheric pressure. Rain gauge is used to measure the amount of rainfall. Wind vane shows the direction of the wind. ये भी सब आपको लिखना है. Thermometer dash measure the temperature. Barometer dash measure the atmospheric pressure. Rain gauge dash measure the amount of rainfall. Weather instruments, this are. You will put the heading of weather instruments, name of the instrument and what it measure. ठीक है, ये भी आपको लिखना है. तो टेम्परेचर हमें ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एयर, जो एयर में है. टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, पर सीजन टू सीजन भी चेंज होता है. राइट? ये सिर्फ डे टू डे नहीं, पर सीजन टू सीजन. जैसे समर्स आर हॉटर देन विंटर, विंटर इज कोल्डर देन समर, रेनी इज प्लेजेंट, राइट? नॉट टू कोल्ड बट इट इज अ प्लेजेंट, ब्रीजी एंड प्लेजेंट. ये सेकंड पॉइंट हुआ. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर में इंफ्लुएंस करता है, उसमें से एक है इंसोलेशन. उसमें से एक क्या है? इंसोलेशन. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है. अब इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन जो सोलर एनर्जी से आती हुई हीट है, उसे इंसोलेशन बोलते हैं. इज अ इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टिंग बाय द अर्थ. अर्थ जिसे एक्सेप्ट करता है. राइट? Yes, ma'am. इसे भी आपको अंडरलाइन करना है. इंसोलेशन इज द, इसे लिखना नहीं है फॉर ऑब्जेक्टिव. इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. यू डोंट हैव टू राइट, यू हैव टू अंडरलाइन. अमन कंटिन्यू रीडिंग. मैम फिर से बोलो ना एक बार इंसुलेटर वाला. इंसोलेशंस यानी कि सोलर एनर्जी जो अर्थ के अंदर आती है. मैम हमें वो अंडरलाइन करना है. हाँ, अंडरलाइन करना है, उसे लिखना नहीं है. मैम अमन के बाद मैं रीड करूं? हाँ, अमन के बाद आप रीड करो. The अमन कंटिन्यू. insolation decreases from the equator towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why poles are covered with snow? If the Earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metal in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise the temperature of the cities. ओके. एसाफल्ट ऑफ रोड्स, ये वर्ड दिख रहा है. एसाफल्ट क्या होता है? वो डांबर नहीं लगाते, डांबर, वो बीच में ऐसे ऐसे रॉक के टुकड़े होते हैं. तार बोलते हैं, तार जिसको. ठीक है? वो रोड के ऊपर वो सरफेस में मिक्सचर ऑफ डार्क नहीं लगाते,
फ्लोरिंग करने के लिए डंबर जैसा तार, उसे क्या बोलते हैं? एसाफल्ट। ये ज्यादा गर्म हो जाता है दिन के टाइम। ओके, पता चल गया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ये जो इंसोलेशन एनर्जी आती है ये डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सन के रेज इक्वेटर पे ज्यादा आते हैं, तो सोलर एनर्जी वहां पे ज्यादा आई। पोल की तरफ सन की रेज कम होती है, तो ऑफकोर्स वहां पे इंसोलेशन कम होता है। देयरफॉर टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। जहां पे इक्वेटर है वहां पे टेम्परेचर हाई है, जहां पे इक्वेटर से दूर जाते हैं वहां पे टेम्परेचर कम है। ठीक है? टेम्परेचर सिटीज आर मच हायर देन ऑफ विलेज बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। कॉन्क्रीट मेटल्स इन द बिल्डिंग वो इंसोलेशन ज्यादा लेते, हीट अप ज्यादा करते। रोड पे जो एसाफल्ट होते हैं वो भी ज्यादा हीट होते हैं। इसी के वजह से ज्यादा सिटीज में गर्मी होती है, और ये रात में ज्यादा रेडिएट होती है, रात को ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे रात को हमें ज्यादा गर्मी लगती है और हमें एसी चालू करना पड़ता है। ओके मैम, जो एसफल्ट वही ना जो कंक्रीट के साथ मिक्स किया जाता है? रोड पे होता है वो। कंक्रीट मेटल्स आर यूज्ड इन यस मैम, वो कंक्रीट मिक्सचर होता है बड़ा सा, हाँ, उसको yes. ऐड कर। हाँ, okay. Now we will come to the air pressure. This already you must have studied in your science. That is the same topic. Harsh, you have to read this. मैम मुझे एक डाउट है। हाँ जी। अब मैम ये आपने बोला कि हमें रात को इसलिए एसी चालू करना बताया, अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि हम गर्मी हो के ठंडी हो हम एसी के बगैर नहीं रहते। वो इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके पेरेंट्स मना भी कर दो ना कि नहीं आज ज्यादा गर्मी है, फिर भी आपको पता नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी लगने लगती है। सही बोला ना तीर्थ मैंने? मैंने अभी एसी चालू है मेरा। देखा? तो मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसे ही बोला। ना मुझे बारिश नहीं हो रही है। क्या हो गया वेदांत? ना अभी तो बारिश नहीं हो रही, तो सब गरम 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 हो रहा है। देखा, बच्चे को बस रीजंस चाहिए। हमारे वक्त तो एसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम कैसे रहते थे पता नहीं। यू जनरेशन इज बॉर्न विद गोल्डन स्पून, है ना? हाँ मैम, एसी, स्मार्टफोन, फ्रिज। मैम आपके टाइम में कूलर्स भी नहीं थे तो मैम तो पंखा होगा। हाँ, और हाथ का, और वो ज्यादा मैम गर्मी मेरे घर पे पड़े हैं मैम, मेरे घर पे 3-4 पड़े हैं। मैं गाँव जाता हूँ तो हर वक्त मेरी दादी के घर से उठा लेता हूँ। तो मैम सब लोग ना मैम बुक का पन्ना फाड़ के ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, चलो अभी हर्ष एयर प्रेशर पढ़ो। यस मैम। उसके पहले ना हर्ष डू यू नो है ऊपर वाला, वो पढ़ना ओके पड़ेगा। मैम। Thus, do you know the standard unit of the measuring temperature is degree? मैं sorry, मुझे break लेना पड़ा। Standard unit of measuring temperature is in degree Celsius. It was invented by Andreas Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. ये डू यू नो टिक कर दो। Air pressure. और ऑब्जेक्टिव हर्ष डू यू नो टिक कर, जितना भी डू यू नो है मुझे बोलने की जरूरत है, सबको टिक करना है फॉर ऑब्जेक्टिव, लिखना किसी को नहीं। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा वही लिखवाऊंगी मैं। Air pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions, and our body exerts as counter pressure. Air pressure is defined as pressure exerted by the weight of the air on the Earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly, and the air pressure is highest at sea level and decreases it with high pressure of at the highest sea level. And sorry ma'am, by mistake ma'am. The air pressure at highest
at sea level and decreases it with the height of horizontally, and distribution on the air decreases with height. अरे यार कहाँ पे मैम, मेरे में एक सेंटेंस 2 टाइम्स लिखा है, मैं मुझे कट करना पड़ेगा इसलिए कंफ्यूजन। मैम यहाँ पे कंफ्यूजन भी आ रहा है बेटा। मैम मैं रीड करूं? हाँ जी, करो। मैम पहले से ही करूं? नहीं, एयर प्रेशर में जो सेकंड पैराग्राफ है वहां से शुरू करो। इन मैम का वॉइस कट रहा है, फिर से बोलो। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट्स by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreased with weight. Horizontally, the distributions of air pressure. ओके, जिया के नेट में भी प्रॉब्लम है। यस मैम। मैम मैं रीड करूं? नहीं, अब मैं ये खत्म कर देती हूँ, बाद में तीर्थ तुम विंड वाला पढ़ना। ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबाउट अस यस पासेस अस विद अ ग्रेट फोर्स। वो ग्रेट फोर्स से पास होने पर हमारे बॉडी को पता नहीं चलता है, हमें फील भी नहीं होता है, सभी डायरेक्शन से आती है। हमारा बॉडी काउंटर प्रेशर, हमारे बॉडी के पास भी एक प्रेशर है जो वो काउंटर प्रेशर देता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में एयर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है? प्रेशर जो उन पे एक्सर्ट होता है, एयर में वेट है अर्थ सरफेस में। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमने जो लेयर्स पढ़े ना, राइट? मैंने लेयर्स को याद करने की ट्रिक दी थी, वो क्या था? Trust me in the exam. Trust me in the exam. एग्जाम वाला जो लेयर्स है, हम जैसे जैसे इस लेयर्स में ऊपर जाते हैं, प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर कम होता है, फॉल डाउन। एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो सी लेवल में होता है, और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो तो वो डिक्रीज हो जाता है। अब एयर प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ एयर, हमने आगे टेम्परेचर वाला पढ़ा ना कि हॉटनेस, कोल्डनेस, अब ये दोनों कैसे वर्क करते हैं? एयर प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टली फैलता है और वो टेम्परेचर ऑफ एयर को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? इन एरिया जहां पे टेम्परेचर हाई होता है और एयर हीट हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया में एयर प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी कि जहां पे विंड वेदर, वेट वेदर है और क्लाउडी सीज है। ओके, लो टेम्परेचर यानी कि जहां पे हवा ठंडी होती है, वो हैवी होती है, यानी कि वो नीचे की तरफ होती है। जब वो नीचे की तरफ होती है तो प्रेशर हाई होता है, यानी कि सनी स्काई। अब मैं ये वापस समझाती हूँ कैसे। टेम्परेचर हाई यानी कि गर्म, यानी हवा कैसी होती है? हाई, हैवी, ऊपर की तरफ, ठीक है? यानी कि प्रेशर कैसा हो गया? ऑपोजिट, लो प्रेशर। और वेदर कैसा हो गया? वेट वेदर। अब टेम्परेचर लो यानी ठंडा, तो वो हैवी, तो वो नीचे की तरफ, तो एयर प्रेशर कैसा हो गया? हाई, उल्टा। और सनी स्काई और क्लियर स्काई। समझ में आया कि मैं वापस समझाऊं? मैम समझ में आ गया मैं अंडरस्टैंड। ये समझोगे तो हाई प्रेशर एरिया हमेशा हवा कैसे मूव होती है? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? यस Yes, ma'am. नाउ वी विल कम टू द विंड पार्ट। इसमें 3 टाइप के विंड हम पढ़ेंगे, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। ओके, तीर्थ को पढ़ना है, तीर्थ विंड पढ़ो। आई विल गिव चांस नाउ, पहले तीर्थ को पढ़ने दो। Wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. ओके, वेट तीर्थ, ये सबको अंडरलाइन करना है और इसको लिखना है, डेफिनेशन ऑफ विंड।
आगे कंटिन्यू करो मैम. हम्म, You can see wind at work as blows dry leaves down the pavement or upper root. Trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing always smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it. Is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples when strong wind have created problem for you. Wind can be broadly divided into three types. ओके वेट नाउ, यहाँ भी रुको, पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ गया. एयर का ये जो मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देखो वो ऊपर वाला समझोगे तो ही ये डिवाइडेड ऑफ विंड्स आप समझोगे. हाँ, बहुत जरूरी है एयर प्रेशर समझना. अब ये जो मूवमेंट है, हवा की मूवमेंट है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, उसे विंड बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है, राइट. sometimes when wind blows gently, बहुत आराम से, with fine dust, and sometimes हम बहुत तेज हवा देखते हैं, राइट. तो यहाँ पे अभी 3 टाइप का हम विंड वाला पढ़ेंगे. परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड. ये सारा मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, यस मित्वा, you have to read all these 3. मैम yes Priya. मैम अभी नीट के कारण मैं लीव हो गई थी, तो आपने कुछ अंडरलाइन करवाया है? Wind का डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ विंड. Can I drink water? ओके मैम. क्या हो गया तीर्थ? Can I drink water? Yes. Yes मित्वा. Okay, ma'am. First, permanent winds. The trade winds, western lines and east lines are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. Second, seasonal winds. These winds change their direction in different seasons. For example, monsoons in India. Third, local winds. These blow only during a particular period of the day or a year in a small area. For example, land and sea breeze. Okay. बस do you recall वाला नहीं लिखना है, सिर्फ it is called do वाला लिखो. Okay, ma'am. अभी देखो 3 winds है, permanent winds, seasonal winds and local winds. इसे ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है. परमानेंट विंड्स को क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड्स, राइट. इसमें 2 टाइप के होते हैं, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज. ओके, ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर एक ही डायरेक्शन में ब्लो होते हैं, इसे परमानेंट बोला जाता है. देखो नाम से ही आपको याद रहना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ब्लो था, परमानेंट, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको परमानेंट विंड बोला जाता है, राइट. और ये ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज का डायरेक्शन बताया है. अब आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में कहां पे आपको परमानेंट विंड दिख रहे हैं? वहां पे वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज देखा है आपने? यस मैम. यस, ट्रेवलिंग वेस्टर्लाइज, एक ही डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है, देखो आपको दिख रहा है, जो एक ही डायरेक्शन में, सदर्न ट्रेड विंड्स, यानी कि ये सारे परमानेंट विंड्स हैं. ओके, ये सारे क्या है? परमानेंट विंड्स है, जो एक ही डायरेक्शन में ब्लो हो रहे हैं. फिर है सीजनल विंड्स. ये सीजन की के हिसाब से उसके डायरेक्शन चेंज करते हैं. मॉनसून इन इंडिया. फिर है लोकल विंड्स, ये पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्लो होते हैं, जैसे समर के टाइम में लू, गरम हवा आनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गरम हवा आती है ना, लू. तो लू क्या हर एक सीजन में होता है? नहीं, ये पर्टिकुलर ही सीजन में होता है. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लू, दिस आर द एग्जांपल्स.
Clear? यस मैम। Yes. ma'am. Okay. और मैम सीजनल विंड में मॉनसून, एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया, सीजन के हिसाब से ब्लो होना। ये लू भी सीजन के हिसाब से ही होता है, पर ये पर्टिकुलर डे या टाइम पे ही होता है। लू पूरे दिन नहीं होता है, लू दोपहर के टाइम पे होता है 2 से 5। समझ में आया? जो पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम में ही ब्लो होता है उसको लू बोलते हैं। यस मैम। मैम Okay. हमें ये तीनों लिखने हैं नोटबुक में। क्या लिखना है? मैम ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। लॉन्ग आंसर्स अभी नहीं लिखने, वो डिस्कस करके मैं लिखवाऊंगी। ओके, क्लियर है यहाँ पे सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ये केस स्टडी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे केस स्टडी। अब डायरेक्ट हम आएंगे मॉइस्चर, दैट इज द लास्ट टॉपिक। मैम यस जिया। मैम मेरा पेज ऐसे स्टिक हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कैसे मैं करूं? मैं सिर्फ लिसन करूं? पीडीएफ कोई डाउनलोड कर दो और फिर उसमें से देख लेना बेटा। मैम वो सीजर से हो जाएगा। अरे मैम स्किल से हो जाएगा पार्ट। चलो अभी मॉइस्चर वाला, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड, हम सबको पता है, एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, उसको हम और फिर वो वाटर वेपर बन जाता है, राइट? कहीं पे भी पानी है, हीट के वजह से वो इवेपोरेट होता है। ये सबको पता है कि वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, अलग अलग वाटर बॉडी, और वो वाटर वेपर बनता है सबसे पहले। मॉइस्चर जो हवा में एक मॉइस्चर, भेज जिसको हम बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? भेज। इसे ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जैसे अभी रेनी सीजन में कैसा एटमॉस्फेयर होता है? ह्यूमिड वाला, चिपचिपा, चिपचिप होता है। ह्यूमिड, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ओके, वह जब ये हवा में ज्यादा वाटर वेपर हो जाता है तब ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको, यानी हवा में ज्यादा वाटर वेपर आ जाता है। ओके, अभी कैसे होता है? As air gets warmer, जब एयर ज्यादा गर्म हो जाती है उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए वो ज्यादा ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड डे में हम सबको पता है हमारे कपड़े भी सूखते नहीं हैं, हमारे बॉडी में से स्वेट होता है, वो भी इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, और हमें अच्छा भी नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है, चिपचिपा होता है इसलिए। यस ओके, तो ये पोर्शन में हमें ये बताता है कि जब एयर वार्म होती है, जिसकी वजह से उसके पास कौन सी कैपेसिटी बढ़ जाती है? होल्ड फॉर वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिड रहता है। अब ह्यूमिडिटी क्या है? एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, इतना पार्ट समझ में आया सबको? यस वेदांत वो पार्ट वापस पढ़ लो। यस मैम। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. Clear everyone? Yes, ma'am. Now comes when the water vapor rises. ऊपर की तरफ जब जाता है, ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा ना इन दी एंड। ये देखो हमें वाटर साइकिल समझा रहा है साथ साथ में। ये वाटर वेपर राइज जाता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन। वाटर वेपर कंडेंस और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में होते हैं। क्लाउड्स, ये सिर्फ वो मास है जो इस वाटर ड्रॉपलेट्स को पकड़ के रखते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाता है और उसे अब जगह नहीं मिल रही तो वो रेन की तरह गिरता है, precipitation की तरह होता है। थर्ड इज precipitation. Water evaporates, evaporation. Water vapor cools down, condensation. Water droplets gets heavy and it falls, precipitation. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Dhara, read this paragraph.
Yes, ma'am. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causes formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water became too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Okay. Precipitation. Clear? Now jet planes fly in the sky, leave a white trail behind them. पता है ना, जब वो घूमती तो पीछे पूरा सा व्हाइट हो जाता है. क्यों होता है? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजिन्स कंडेंसेस. उनके इंजन पे से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है. कुछ समय तक दिखता है हमें, फिर वो चला जाता है. ओके, ये गिव रीजन है. तो इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करो और वहां पे स्टार कर दो. कई बार आपको ये गिव रीजन पूछा जाता है. जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ व्हाइट ट्रेल बिहाइंड. व्हाई? Because the moisture from their engines condenses, we see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement. Reason अगर कोई air movement नहीं हो तो ही. Clear? तो इसका पूरा आंसर ये है. दिया, read this paragraph. jet planes वाला. मैम मेरे को दो ना. तेरे को दूं? हाँ देती हूँ. दिया को पढ़ लेने दो, उसके बाद तुम पढ़ना. Yes, ma'am. Jet planes flying in the sky leave a white train behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Okay. Now, precipitation that comes down on the earth in a liquid form is called rain. ठीक है? Most of the groundwater comes from the rainwater. जो ग्राउंड वाटर है, जब बारिश होती है तब वो ग्राउंड वाटर उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर देती है. प्लांट्स भी हेल्प करते हैं पानी को प्रिजर्व करने में. व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर माउंटेन पे गिरते हैं और उसकी वजह से फ्लड आ जाता है लोअर एरिया में. तो इसलिए ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए. वो पानी को पकड़ के रखता है जिससे फ्लड नहीं आएगा. ऑन दिस मैकेनिज्म, यहाँ पे 3 टाइप के हमें रेनफॉल दिखा है. आपको डायग्राम दिख रहा है. साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं. साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि वार्म एयर ऊपर जाता है, कोल्ड एयर जगह लेता है और बारिश होती है. ठीक है, ये मॉइस्ट एयर के वजह से होता है रिलीफ रेनफॉल. और कन्वेक्शनल रेनफॉल वार्म एयर के वजह से होता है. मैम मैं पढ़ूं लास्ट पैराग्राफ? रुको. हाँ करो. Okay, ma'am. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water when trees on hillsides are cut. Rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall: the convection rainfall, the organic rainfall, and the cyclone rainfall. ओके, नाउ सी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कार्टून टाइप का होगा जहां पे ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल साइक्लोन के वीडियोस दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? जब वार्म और कोल्ड एयर दोनों मिलते हैं. वार्म और कोल्ड एयर क्या होता है? दोनों मिलते हैं. सिंस वार्म एयर जो होता है वो लाइटर होता है और वो कोल्ड एयर के ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है, फिर बारिश गिरती है. ओके, उसका वीडियो हम तीनों का मैं दिखाऊंगी आपको. ओके ओके, ये पहला वाला वाटर वेपर जैसा होगा. कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि जब सन की हीट सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती है, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर होता है. कन्वेक्शनल यानी नॉर्मल वाटर साइकिल वाला प्रोसेस. गर्मी की वजह से वाटर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ. समझ में आया?
और ऑर्गेनिक रेनफॉल यानी कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो रेन, स्नो, उस मॉइस्ट एयर, इस सब की वजह से वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन होता है और यूजुअली माउंटेन रेंज में होता है। ओके, उसे रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। जब हॉट एयर पासिस ओवर द माउंटेन्स और तब बारिश होती है, मॉइस्ट एयर, सॉरी। तो ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के हिसाब से तीनों, तो आपको शायद से पता चले। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया है पर मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया। रेनफॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल के लिए, प्लांट के लिए। फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस पे रेनफॉल ही लेकर आता है, पर पानी की स्कैर्सिटी है, कई बार ड्राउट होता है, तो कई बार फ्लड भी आता है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम आपने होमवर्क क्या दिया था, एक बार रिपीट कर देना मैम। मैं होमवर्क कभी हो गया होगा। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है उनको सबसे पहले आगे वाला होमवर्क 3 बार करना है। आज का होमवर्क मैं बताती हूँ। वेदर का डेफिनेशन, क्लाइमेट का डेफिनेशन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है मैम, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। वेदांत, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम अब थोड़ी ठीक आई, पहले थोड़ी कट रही थी। ध्वनित और जिया, आपका कनेक्शन चेक करो बेटा। यस मैम, मैं चेक यस मैम। वेदर की डेफिनेशन, क्लाइमेट की डेफिनेशन, टेम्परेचर की डेफिनेशन, वेदर इंस्ट्रूमेंट सारे लिखने हैं। मैम टेम्परेचर तो आपने करा मैम है। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करना है? नहीं, लिखना है। ओके मैम। मैम टेम्परेचर टेम्परेचर का मैंने लिखा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द हाँ, एयर मैम, इन वो तो टेम्परेचर। मैम वो वेदर आपने बोला, क्या बोला? अरे मैम एक बार Weather- एटमॉस्फेयर का बोल दो ना। मैम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करना है? वो डायग्राम दिख रहा है? मैम एक बार Yes, एटमॉस्फेयर की करना है? डेफिनेशन बता दो ना। तीर्थ रुको एक मिनट बेटा। जिया और ध्वनित जब मैं करवाती हूँ ना, तो जो टिक करवाती हूँ वो प्लीज टिक किया करो। मैं पूरा सारा नहीं टिक करवा सकती हूँ। That is your duty to pay मैंने attention. तो कर दिया। तो फिर क्यों बीच में बोल रहे हो? अभी ध्वनित की नेट का इश्यू है जिया, उसको एक बार बता देना बाद में। आप एक ही स्कूल से बिलोंग होते हो? ध्वनित का कौन दोस्त है यहाँ से? मितवा। हाँ, मितवा, बता देना। को कौन सा एटमॉस्फेयर का समझना है? मैम जो 3 बार लिखना है। आगे मैंने क्या होमवर्क दिया था वो तुम्हें याद नहीं है? एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन और 2 डायग्राम। यस मैम, अवर अर्थ से लेकर कॉल्ड एटमॉस्फेयर वो वाला है ना मैम? एक ही लाइन है। यस मैम, अवर अर्थ इज से लेके कॉल्ड एटमॉस्फेयर तक। ओके, अब आज का जो है वो मैंने सारा टिक करवाया। वेदर का डेफिनेशन, क्लाइमेट का डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, विंड का डेफिनेशन। रुको, विंड का डेफिनेशन, बस इतना ही लिखवाया है मैंने। वेदांत ने सबके लिए लिख दिया है। थैंक्स वेदांत। अब बोलो मितवा, क्या डाउट है? मैम मुझे ध्वनित को वो आपने सब कुछ टिक करा है वही भेजना है ना? हाँ, क्योंकि पता नहीं ध्वनित को बहुत ही नेट का इश्यू है, उसको हर दिन होता है, तो शायद से मैं जब टिक करवाती होंगी वो बीच बीच में चला जाता होगा। तो आज के दिन उसको प्लीज भेज दो। मैम तो फिर मैं ऋतु और ध्वनित को दोनों को साथ में भेजी। मैम हर रोज एक बार तो लीव हो ही जाता हूँ। हाँ पता है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम और पजल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके मैम। और मैम आपने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करो ना मैम, मेरा कॉल आया था। अरे टेक्सचुअल एक्सरसाइज बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमें करना है क्या अंश? स्कूल में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर 5 मैम अभी मैम वो चलाएंगे। कौन सा करा रहे? मैम आज तो वो क्विज ली थी हमारी।
चैप्टर खत्म होने के बाद क्विज लेते हैं और अभी वाटर कराएंगे ज्योग्राफी का। सिविक्स का हो गया 5। चैप्टर 5 होगा, अभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी चैप्टर 5 चलाएंगे। ओके चलो, तो नेक्स्ट टाइम तीनों टेक्स्ट बुक साथ में रखना। मोस्ट प्रोबेबल मैं सिविक्स ही खत्म कर लूंगी, ठीक है? ओके ओके चलो, बाय एवरीवन। मैम बाय मैम। बाय। बाय मैम।